ईडी जल्द ही राहुल गांधी के घर पे दस्तक देने वाली है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है, जो आज की रिपोर्ट ये बता रही है कि राहुल गांधी के घर ईडी जल्द ही दस्तक देने वाली है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज से एक दो दिन पहले जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल करके सामने आती है, उस तरीके से पूरे जैसे ही मामला वो रिपोर्ट निकल करके आना कहिए कि फ़ौरन ही तुरंत पूरे सोशल मीडिया पे ये तूल पकड़ लेता है और ये सवाल सेबी के चीफ पे खड़े होते हैं और भारत सरकार पे भी ये सवाल उठने लगे। और जैसे ही वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आनी कहिए कि तुरंत ये मामला पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर भी किया। और कवर करने के बाद उसके बाद जैसे ही ये मामला निकल करके आना कहिए कि फ़ौरन तुरंत राहुल गांधी ने भी अपना एक बयान जारी किया और बयान जारी करने के बाद उसमें तमाम तरह की कमियां और क्या क्या चीज़ थी वो सब सारी चीज़ों को उन्होंने गिनाया। और उसके बाद जैसे ही वो वीडियो निकल करके आई, वो क्या वीडियो थी वो आप देखिए, उसके बाद इस पे विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। नमस्कार। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. राहुल गांधी ने क्या कहा, एक मैच के एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने क्या समझाया, मैच के एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने जो चीज़ समझाया, जो चीज़ उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना भी। तो ये जैसे ही इनका ये वीडियो, राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल होना था कि तुरंत पूरे लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग हरकत में आ गए। इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फ़ौरन हरकत में आए और इसके बाद ये सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ईडी उनके घर जल्द ही दस्तक देने वाली है। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इनका ये बयान है और उसके बाद आज का ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रहा है कि जल्द ही उनके घर पे ईडी दस्तक देने वाली है। आज से कुछ दिन पहले 2 अगस्त को, जैसा कि उन्होंने 1:52 पे, रात के 1:52 पे उन्होंने एक ट्वीट किया था
और उस ट्वीट में ये था कि जो उनका कहना था कि जो मैंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया वो लगता है कि 2 in 1 को पसंद नहीं आया, यानी 2 में से 1 को किसी को पसंद नहीं आया। और ये पसंद नहीं आया तो लगता है कि अब हमारे घर पे ईडी जल्द ही दस्तक देने वाली है और ईडी आएगी तो उसका मैं खुले बाहों से स्वागत करूंगा, चाय और बिस्किट हमारे तरफ से। ये जैसा कि राहुल गांधी ने उस रात में ये बात कही थी, तो आज वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं ये सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। आज जैसा कि ये रिपोर्ट निकल करके आ रहा है कि ईडी जल्द ही उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी को ईडी ने तकरीबन 40 घंटों तक पूछताछ उनसे की थी। वो एक अलग बात है कि पूछताछ में उनके हाथ कुछ लगे नहीं तो वो उनको फिर से छोड़ दिया गया और उसी समय इनकी सांसदी भी गई, उसी समय इनका घर भी उस समय छिन गया। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन अगर जे ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो ये कहीं ना कहीं उनका भविष्यवाणी जो उन्होंने उस रात को किया था ये कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आएगा। और ये इस जांच एजेंसीज के ज़रिए राहुल गांधी पे जो हमला किए जा रहे हैं उनको, उनकी बातों को, उनके आवाज़ को जिस तरीके से दबाया जा रहा है वो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि यहाँ का नेता हो या कोई भी हो, यहाँ का हर एक नागरिक का सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। यहाँ से हर एक नागरिक का अपने चुने हुए सरकार से, अपने चुने हुए सरकारों से सवाल करने का अधिकार है। इसलिए कि यहाँ का अगर जे किसी भी तरीके से अगर जे कोई भी चीज़ जनता को पसंद नहीं आता तो उसके हवाले से सरकार से ही सवाल किया जाएगा, ये एक तय बात है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछता है उसे कभी देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, उसे मतलब उसकी किसी भी तरीके से उसकी हर तरीके से जिस तरीके से हो सकती है उसकी आवाज़ को दबाया जाने की कोशिश की जाती है। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो ये सिरे से लोकतंत्र की एक हत्या की कोशिश है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पे हर एक का एक अधिकार है, अपना अपना अधिकार है और हर किसी को सरकार से सवाल करने का हक हासिल है यहाँ का। तो इसलिए हम सबको अपने सरकार से सवाल पूछना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर लें, वो ईडी उनका गिरफ्तार करे या उनकी जांच एजेंसीज हमें गिरफ्तार करे या किसी भी तरीके कोई भी मामला हो, हम सरकार से ही सवाल करेंगे। इसलिए कि जो देश में जो पावरफुल होता है वो उसी से सवाल किया जाता है और उसी के ज़रिए हम सबको राहत भी मिलती है और उसी के ज़रिए हम सबको मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हम सब आप ही से सवाल करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या अदरवाइज़ कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो सवाल उन्हीं से किया जाता है जो ताकतवर लोग होते हैं, जो सत्ते में होते हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं, सवाल उन्हीं से किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है राहुल गांधी के हवाले से, इस पे आप तमाम लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक